student. Today we have to discuss ellipse. So first we'll write down the definition of ellipse. What is ellipse? So ellipse is the set of all the points in a plane. Set of all the points in a plane. Set of all the points in a plane whose sum of and a set of all the points in a plane whose sum of distances from two fixed point. Sum of distances from the two fixed points is always constant. This is the definition of ellipse. Set of all the points in a plane whose sum of distances from two fixed point is always constant. So important words are sum of distances from two fixed point. Sum of distances from the two fixed point is always constant. So what is ellipse? What is an ellipse? So for that we require two fixed points. Let's say two fixed points are F1 and suppose this is F2. These are the two fixed points F1 and F2. Done. Now we have to consider set of all the points in a plane whose sum of distances is always constant. So we will consider this set of points. These are the set of points. Infinite points are there. ये मैंने consider कर लिया. Done. So now again consider this definition. According to definition, it's a set of all the points. Out of that set, consider one point P1. See P ले लो चलो. P. This is point P. Now distance of this point P from the two fixed point. Two fixed points are F1 and F2. So we have to consider distance of this point P from point F1 as well as from point F2. So distance of this point P from F1 is Pf1 and distance of this point P from F2 is Pf2. Sum of distances. So sum of distances is यहाँ पे लिखें Pf1 plus Pf2. This is the sum of distances is always remains constant. कहाँ से? From this point है ना. एक point P लिया, consider another point Q है ना. यहाँ पर एक दूसरा point Q consider कर लो. Suppose this is point Q. Visible नहीं है Q. Done. So what is the sum of distances of this point Q from point F1 and F2? It's a QF1 plus QF2. This is always remains constant. That means QF1 plus QF2. ये सम इक्वल रहेगा ना, चेंज नहीं होगा. सपोज आप कोई तीसरा पॉइंट ले लो. सपोज इफ यू आर कंसीडरिंग पॉइंट R ले लिया है ना. So sum of distances will be RF1 plus RF2. It will always remains constant. है ना. So this is the definition of ellipse. This is always remains constant. Done. आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट का है ना F1 और F2 से आप डिस्टेंस फाइंड करो. वो जो सम मिलेगा ना, सम ऑफ डिस्टेंस, that will always remains constant. So that set of all the points in a plane will give us what ellipse. So this is the definition of ellipse. Is that clear? Definition clear हुई? Done. तो सपोज आपको इलिप्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे? आप है ना एक प्लेन लेंगे है ना, एक लकड़े का बोर्ड ले लो सपोज है ना, उसको आप प्लेन कंसीडर करो है ना. एक लकड़े का एक बोर्ड ले लो, वहां पर एक है ना प्लाई होती है जैसे प्लाई है ना, वहां पर आप ऐसे दो नेल्स लगा दो है ना. गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? खिल्ली. ये लगा दिया यहाँ पर F1 और F2
है ना, 2 नेल्स आपने फिक्स कर दी यहाँ पर, है ना, प्लाई पर। अभी आपको क्या करना है, एक आपको थ्रेड लेना है ना, थ्रेड मतलब डोरी। अभी आप काइट फ्लाइंग डे आ रहा है तो थ्रेड यूज करेंगे, डोरी, तो वो डोरी ले लेना है। और वो डोरी, है ना, ये आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, डोरी मतलब थ्रेड, और वो यहाँ पर आपको लगा देनी है ना, एक उसका छेड़ा यहाँ पर लगा दो, एक एंड, और दूसरा एंड यहाँ पर फिक्स कर दो। और जो थ्रेड है उसकी लेंथ है ना, वो F1 और F2 से थोड़ी ज्यादा लेनी है। यहाँ से आप डायरेक्ट इतना लगा देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो थ्रेड है उसकी लेंथ कितनी रखनी है, ये जो F1 और F2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उससे ज्यादा रखनी है। और उसके जो दोनों एंड है वो आपको यहाँ पर F1 और F2 को लगा देना है थ्रेड के। उसके बाद आपको पेन लेनी है ना, तो थ्रेड लगा देंगे। सपोज ये थ्रेड ऐसे यहाँ पर आ गई, है ना, और इसको यहाँ पर पॉइंट फिक्स करके इसको घुमाना है। जैसे आप घुमाएंगे ना तो आपको एक शेप मिलेगा। वो जो शेप होगा ना, वो क्या होगा, वो आपका होगा एलिप्स। क्लियर? प्रैक्टिकली आप कैसे एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मली सर्कल के लिए हम एक ही पॉइंट करते हैं, सेंटर, है ना, और फिक्स डिस्टेंस पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन आपको इलिप्स ड्रॉ करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो ऐसे आप करके प्रैक्टिकली इलिप्स डिराइव कर सकते हो। तो वो जो शेप मिलेगा ना, वो आपको एक इलिप्स मिलेगा, है ना। ऐसे होता है शेप्स, ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इलिप्स। नाउ विल स्टडी important features of an ellipse, है ना। जैसे सर्कल होता है, सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है, उसके बाद रेडियस होती है, डायमीटर होता है ना, कोड होते हैं, कोड, आर्क, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो सेम वे वी हैव टू डिस्कस फीचर्स ऑफ एन इलिप्स, है ना। पैराबोला में स्टडी किया था हमने। पैराबोला में क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, फोकस था, है ना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट थे। और क्या था वो, लेटस रेक्टम था। सो हियर यू हैव टू डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स में डिफरेंट डिफरेंट कौन से फीचर्स होते हैं वो हमें स्टडी करना है। तो इलिप्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने देख लिया। डन। सो अगेन आई एम ड्रॉइंग वन इलिप्स, है ना, विथ 2 फिक्स पॉइंट F1 एंड F2। ना ये अच्छा ड्रॉ नहीं होता है, लेट मी ट्राई। थोड़ा सा हुआ, है ना। ये इलिप्स है, भावनाओं को समझो, ये हमारा इलिप्स है। डन। सो इन दिस इलिप्स 2 फिक्स पॉइंट आर देयर। The 2 fixed points are F1 and F2. डन। तो पहले डिफाइन करेंगे दिस 2 फिक्स पॉइंट्स, दिस फिक्स पॉइंट्स, है ना, ये उसका फर्स्ट फीचर। 2 फिक्स पॉइंट्स F1 एंड F2। एक होगा तो हम उसको फोकस बोल देते, फोकस, है ना, फोकस। अब ये 2 हो गए तो उसके लिए वर्ड यूज किया है फोकाई, है ना, फोकाई, प्लूरल वर्ड, फोकाई। So F1 and F2 are foci of this ellipse. Then 2 fixed points. 2 fixed points are known as foci of this ellipse. Done. इसको क्या बोलेंगे, foci, F1 and F2. Focus point F1, focus F2. Combinedly, they are known as foci of this ellipse, F1 and F2. Done. Then consider one line segment. दिस इज वन लाइन, है ना, लेकिन इतना पार्ट। एंड सपोज दिस इज सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ इलिप्स, उसको हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल सी से। सो कैपिटल सी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स का सेंटर कैपिटल सी, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का सेंटर, है ना, उसको हम ओरिजिन पर रखेंगे। ये इलिप्स का सेंटर आ गया, एक लाइन सेगमेंट आ गई, सपोज दैट लाइन सेगमेंट इज DE, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दूसरी लाइन सेगमेंट ले लें AB। सो 2 लाइन सेगमेंट्स आर देयर, है ना, एक DE और एक दूसरी है AB। डन। सो दिस DE is known as major axis,
DE is known as मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स. क्या बोलेंगे उसको हम? मेजर एक्सिस. डन. और ये जो AB है उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस DE इज मेजर एक्सिस. अब इसको AB, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस. और ये उसका हो गया सेंटर ऑफ इलिप्स. C इज द सेंटर ऑफ इलिप्स. डन. F1 and F2 आर फोकाई ऑफ इलिप्स. द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम, है ना, ये जो मेजर एक्सिस है ना, दिस इज वन लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम दिस टू फोकाई is known as major axis. So major axis is length of this line segment DE, and this line segment which is perpendicular, this is perpendicular to our major axis from the center. So this line segment is known as minor axis. Clear students? इतना clear हुआ? Major axis, minor axis, center and foci. Now, now. यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, DE is our major axis. Now we'll consider only this part. यहाँ से लेके यहाँ तक. Done. So this part will represent it by the length A. Done. तो ये देखो कितना पार्ट हुआ. ये जो मेजर एक्सिस है ना उसका हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ, तो उसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ कर दिया हमने, तो उसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. तो वो क्या हुई? CE या फिर DC, है ना, या फिर इसको CD बोलो या फिर CE बोलो. सो सेमी मेजर एक्सिस वी आर ऑलवेज टेकिंग इट एज अ स्मॉल a. ये जो स्मॉल a लेंथ है उसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. क्लियर? तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस हुआ. ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज a. और ये माइनर एक्सिस और उसका हाफ कंसिडर करें तो होगा सेमी माइनर एक्सिस, है ना, वो होगी AC या फिर BC. AC इक्वल टू BC. उसको ऑलवेज कंसिडर करेंगे स्मॉल b से, है ना. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बाय स्मॉल b एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बाय A. तो ये लेंथ b हुई, ये नीचे भी आप उसको b कंसिडर कर सकते हो. इतना क्लियर हुआ? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. capital C is the center of ellipse. Now these are the foci. So length of this focus point from this center that we are taking as a small c, है ना. ये capital C है और ये small c है ना. कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने देना यहाँ पर. ये कैपिटल C सेंटर और ये जो स्मॉल c है, दैट स्मॉल c इज लेंथ ऑफ दिस फोकस फ्रॉम दिस सेंटर. उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, या फिर आप उसको फोकल लेंथ, अब साइंस में वर्ड यूज करते हो और यहाँ पर आप इसको सिर्फ फोकस लेंथ बोलेंगे तो भी चलेगा. फोकस लेंथ is small c. So what is the focus length? It's a distance of this fixed point, है ना. These two fixed points are there. So distance of these two fixed points from this center. तो ये distance c हो गया, इसको भी आप small c consider कर सकते हो. Done. So if we consider this focus length as a small c, we'll get the coordinates of this focus point, है ना. फोकाई, ये जो दोनों फोकाई है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. क्या होगा? It will be C0, this will be minus C0. So coordinates of foci will be plus or minus C0. Coordinates of the foci will be plus or minus C0 होगा. Clear? Plus C is the distance of this focus point from this origin. Is that clear? C is the center of ellipse. Done. एक और फीचर बाकी है. This DE, what is DE? It's a major axis. DE is our major axis. Now if we consider the endpoints of this major axis, है ना, ये D and E, these are the endpoints of major axis. So these endpoints of major axis are known as vertex, है ना. ये एक vertex 1 हो गया, ये vertex 2 हो गया. दोनों को साथ में बोलेंगे तो होगा vertices. क्या बोलेंगे? Vertices. Vertices of in ellipse. Vertices are point E and point D. These are the two vertices of an ellipse.
क्लियर स्टूडेंट्स? वर्टाइसिस क्या होते हैं? वर्टाइसिस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। वर्टाइसिस आपको डिफाइन करने हैं तो कौन से एंड पॉइंट लेने हैं? वी हैव टू कंसीडर एंड पॉइंट्स ऑफ दिस मेजर एक्सिस। सो एंड पॉइंट्स ऑफ दिस मेजर एक्सिस आर नोन एज वर्टाइसिस ऑफ एन ellipse. डन? सो these आर द फीचर्स ऑफ एन ellipse. कौन से हुए? फोकस पॉइंट, है ना? Two fixed point from which we are getting our ellipse. The two fixed points are known as focus. Combinedly, they are known as foci. They are represented by F1 and F2. Coordinates are plus or minus C0. C is the distance of this focus point from the center. Center is represented by capital C. Focus length is represented by small c. Done? This line segment DE passing from this focus point is known as major axis. Done? And length of semi-major axis is represented by, always represented by this small a. है ना? Length of semi-major axis is always represented by this small a. And length of semi-minor axis is always मतलब always, है ना? Always represented by this small b. And this focal length is always represented by this c. तो आपको ये small a, small b and small c always, है ना, दिमाग में रखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Small a, length of the semi major axis. Small b, length of semi minor axis. C is focus length. Done? Endpoints of major axis are known as vertex, or we can say vertices of ellipse. But these are the features of an ellipse. Is that clear? Very good. चलो इसके बाद important, we'll try to find the relationship between small a, small b and small c. मैंने आपको बोला था कि small a, small b and small c क्या होता है? बोलो क्या है? We have to obtain a relationship between small a, small b and small c. है ना? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा करके दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा. अदरवाइज आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है. So we'll try to find the relationship between small a, small b and small c. बोलो मलिक जोया, what is small a? Runa, what is small b? And Tanisha, what is small c? कोई नहीं, अगर किसी को आंसर देना हो तो दे सकता है अनम्यूट होके. बोलो. स्मॉल a is semi major axis. वेरी गुड, है ना? दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर, सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस ए, है ना? बी इज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. एंड सी इज फोकस लेंथ. डन? ये आपको दिए हुए हैं. तो हमारा एलिप्स है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, थोड़ी गड़बड़ी की, है ना? फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, सो वी हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. सो दिस इज माइनर एक्सिस, है ना, ए बी, मेजर एक्सिस डी ई, एंड दिस इज अवर सेंटर सी, सेंटर कैपिटल सी, है ना? इतने सारे फीचर्स है कि कहाँ किसको लिखे वही समझ में नहीं आता है. इसको हम बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे F2. F2, F2, F1 विजुअलाइज हो रहा है, सबको दिख रहा है ना? सो हियर कंसिडर वन राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा? ये वाला, है ना? इतना राइट एंगल ट्राइंगल आपको कंसिडर करना है. कोई बताएगा मुझे कौन सा है? इन ट्राइंगल ACF1, कौन सा? ACF1, है ना?
ये हुआ विजुअलाइज ACF1. So in this right angle triangle, can we write the length of this AF1? AF1 हाइपोटेनियस, ये लेंथ लिख सकते हैं हम AF1. क्या होगा, है ना, ये B है और ये C है, so it's a square root of B square plus C square. Is that clear? इसमें किसी को कोई डाउट? Here we have considered one right angle triangle. कौन सा? ACF1, ये वाला. देखो यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना है ना. This is one right angle triangle AC and F1. This is length of minor axis, है ना, length of semi minor axis which is B. This is focal length C. तो हमें ये निकालना है. तो AF1 according to Pythagoras theorem it will be B square plus C square whole square root आएगा. डन, ये क्लियर हो गया. नाउ अगेन we'll consider one triangle. अभी ACF1 कंसिडर किया ना, अभी ये कंसिडर करो ACF2. So in triangle ACF2, so again we have to find this AF2. बोलो AF2 क्या होगा यहाँ पर? तो सेम है ना, ये लेंथ सेमी माइनर एक्सिस B, ये फोकस लेंथ C, तो AF2 मिलेगा. क्या होगी इसकी लेंथ? है ना, ये भी C है, तो ये सेम होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. Is that clear? Now according to definition of ellipse, sum of distances of 2 points on an ellipse is always constant. So what we can write? We can write distance of this point A from this distance of this point A on ellipse, that is AF1 plus AF2. This is always equal to, है ना, we are considering another point on ellipse. That another point on ellipse is nothing but this point E, है ना, point E को consider कर ले. तो according to definition क्या होगा, ये जो point E है उसकी लेंथ कहाँ से, फोकस पॉइंट से सेम होगी. तो क्या होगा, EF2 प्लस EF1 होगा. यस और नो, है ना. पॉइंट ए इलिप्स पर है, तो ये पॉइंट ए का F1 और F2 से डिस्टेंस, तो AF1 प्लस AF2 इतना डिस्टेंस, वो कितना होगा, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट E फ्रॉम दिस टू फोकस पॉइंट, दैट इज EF1 प्लस EF2 होगा. यस और नो? बाय definition of an ellipse, can we write this? Yes or no? So AF1 प्लस AF2, है ना, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू EF2 प्लस EF1, ये होगा, है ना. मेन अभी ये डिराइव करना है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड EF2 प्लस EF1, ये क्या होगा वो डिराइव करना है. बोलो कोई आइडिया? तो देखो EF2 पहले फाइंड करें, तो EF2 क्या होगा, EF2 E से लेके फोकस पॉइंट F2 तक की लेंथ होगी ना. फोकस करो यहाँ पर आप, EF2 E से लेके F2 तक होगा, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ये लेंथ EF2 को. कौन से दो पार्ट, F2C, है ना, F2C यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये CE प्लस CE. इज दैट क्लियर, है ना. F2 से सेंटर तक और सेंटर से ये E पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, F2C प्लस CE, है ना, ये कैपिटल CE वाला CE है. प्लस अभी ये जो EF1 है, EF1, ये डिस्टेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CE है ना, टोटल डिस्टेंस में से मैं CF1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस, है ना, CE माइनस CF1. इज दैट क्लियर?
अभी बोलो ये F2C क्या होगा? F2C स्मॉल सी, अभी ब्रैकेट को ओपन करके पहले लिखते हैं, चलो उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। F2C प्लस सीई माइनस CF1, है ना? तो ये देखो F2C एंड F1C ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा? F1C एंड F2C के बीच में क्या रिलेशन होगा? है ना, ये CF1 मतलब F1C है, तो F1C एंड F2C के बीच में क्या रिलेशन होगा? F1 एंड F2 आर दी we can say focus point, length of focus length are equal, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना? दिस इज इक्वल टू सी एंड दिस इज इक्वल टू सी, बोथ आर इक्वल, तो कट CE plus CE 2CE. What is CE? CE is length of semi major axis, है ना? CE is the length of semi major axis, so this is equal to twice of A. Is that clear, students? Put that twice of A over here. So we are getting relation that is twice of, है ना, square root of B square plus C square equal to twice of A. Again 2 cut and take square on both sides. So if we are taking square on both sides, we are getting B square plus C square equal to A square. A square equal to B square plus C square is the relationship between A, B and C, है ना? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एक सम में यूज करेंगे। तो ये कहाँ से आया वो समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, चलो। और इसके बेस पर हमें, है ना, दो कंक्लूजन निकालने हैं। सो यहाँ पर, है ना, इफ आई एम टेकिंग दिस C इक्वल टू 0, आपको ही बताना है ना? इन दिस फॉर्मूला इफ आई एम टेकिंग C इक्वल टू 0 तो क्या होगा? फॉर्मूला देख के तो पता चलेगा कि C इक्वल टू 0, तो हियर वी कैन राइट इफ C इज इक्वल टू 0, A स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, और वी कैन राइट A इज इक्वल टू B। तो इसका क्या मतलब हुआ वो आप बताएंगे मुझे। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आर सेम, हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? इट विल नाउ कन्वर्टेड इनटू सर्कल। वेरी गुड, चलो सबको समझ में आ गया, एक को समझ में आया मतलब सबको समझ में आ गया, है ना? सो इफ C इक्वल टू 0, है ना, व्हाट इज C? C इज फोकस लेंथ, है ना? देखो फोकस लेंथ 0 हो गई, तो ये दोनों फोकस लेंथ 0 हो जाएंगे, तो ये जो दोनों फोकस है ना, दोनों फोकाई वो कोइंसाइड हो जाएंगे, कहाँ पर? सेंटर पर। और ये दोनों फोकाई सेंटर पर कोइंसाइड हो जाएंगे, तो ये हमारा जो एलिप्स आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू सर्कल, है ना? A विल बी इक्वल टू B, और दोनों हो जाएगी इक्वल टू रेडियस R। Done. So this is our first conclusion, first observation. In this ellipse, if B square plus C square equal to A square, if C is 0, focus length is 0, both foci will be coincide. Both foci will be coincide means semi-major axis and semi-minor axis both are equal, and that means we are getting one circle. Done. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। वेरी गुड, चलो फर्स्ट समझ में आ गया। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन। नाउ इन दिस फॉर्मूला इफ आई एम टेकिंग B इक्वल टू 0, इफ B इक्वल टू 0 तो बोलो क्या होगा? इफ B इज इक्वल टू 0, विजुअलाइज करो, B को 0 करना है तो क्या होगा? है ना, ये B को मैं 0 कर दूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कुछ नहीं होगा। देखो B को 0 कर दिया, है ना, ये B यहाँ पर आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट वन स्ट्रेट लाइन। डन। और स्ट्रेट लाइन के लिए एक कंडीशन, है ना, आई विल गेट वन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए भी एक कंडीशन है ना? पहले मैंने बताया कि F1 F2 है, वो स्ट्रेट लाइन के लिए, है ना? इलिप्स को सपोज आपको बनाना है तो क्या करना होगा? द लेंथ ऑफ B तो 0 कर दिया तो स्ट्रेट लाइन मिल गई, लेकिन अगर आपको इलिप्स बनाना है तो यहाँ से कंडीशन आएगी इलिप्स के लिए, क्या? कि ये जो लेंथ A है ना, AF1 एंड AF2, लेंथ AF1 AF2 it will always greater than this F1 F2, है ना? क्योंकि ये B 0 हो जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ कि AF1 एंड AF2 इक्वल टू क्या हो गया? F1 F2, है ना? ये B इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? B इक्वल टू 0 मीन्स AF1 प्लस AF2 इक्वल टू F1 F2। डन। F1 F2 हो जाएगा,
है ना। यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे यहाँ पर नेल्स लगाए हुए हैं और जो थ्रेड है हमारी उसकी लेंथ F1 F2 इक्वल टू हो गई, तो क्या हम इलिप्स बना पाएंगे? तो इलिप्स फॉर्म ही नहीं होगा। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलिप्स हमारी जो थ्रेड है ना उसकी लेंथ F1 F2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके हमारी पेंसिल ऐसे मूव करेगी और इलिप्स मिलेगा। डन। तो ये लेंथ ज्यादा होगी उसका मतलब बी की वैल्यू कुछ होगी, तभी जाके हमारा जो इलिप्स है वो बनेगा। डन। इफ बी इज इक्वल टू 0 तो हमारा इलिप्स नहीं बनेगा, वहां पर हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये कंडीशन आ गई फॉर द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलिप्स। कोई इलिप्स एग्जिस्ट करेगा कब करेगा? जो हमारी थ्रेड की लेंथ है ना AF1 एंड AF2 उसकी लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोकाई उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलिप्स। कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलिप्स, कोई भी इलिप्स को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है। तो ये समझ में आया? सबको समझ में आया? पक्का? मुझे नहीं लगता है कि सबको समझ में आया। चलो अच्छा है, तो आगे गुड। तो ये रिलेशन आपको याद रखना था सिर्फ, है ना, क्या? ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, है ना। सिर्फ इलिप्स पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, लेकिन जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे साथ में दोनों फॉर्मूला आएंगे तो कंफ्यूजन, है ना। सारे फॉर्मूला एकदम इजी है, लेकिन दो टाइप के फॉर्मूला एक साथ में याद रखने हैं ना तो आपको कंफ्यूजन होने वाला है। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, है ना। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? पहले उसको हम डिफाइन कर देते हैं, बाद उसके बाद उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। सो एसेंट्रिसिटी, है ना, एसेंट्रिसिटी इज वन रेशियो, उसको हम एसेंट्रिसिटी रेशियो भी बोलेंगे कई बार। सो एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ सी एंड ए, सी बाई ए। अभी सबको पता है कि सी क्या है और सबको पता है कि ए क्या है। डन। सो एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ सी एंड ए। C focal or focus length and A length of semi major axis. So in case of ellipse, है ना, for ellipse हमें पता है कि C की वैल्यू A से छोटी होगी, C is less than A, so value of E will be always less than 1, है ना। एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है ना रेशियो, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। डन। फॉर इलिप्स एसेंट्रिसिटी विल बी ऑलवेज लेस देन 1। सर्कल के लिए क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे, बोलो। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी फॉर द सर्कल? अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस एसेंट्रिसिटी वी कैन राइट सी इक्वल टू AE, C equal to AE. Replace this C with AE. It's a square equal to B square plus C square. C square is A square plus E square. Done. So now here we can write the value of this B square. So our B square is A square minus A square E square. Done. So B square will be taking A square common. It's a 1 minus E square. So this is the relationship between A, B and eccentricity. बोलो सर्कल के लिए क्या था, अभी आपको समझ में आ गया। सर्कल के लिए अभी हमने डिराइव किया था ना कि A इक्वल टू बी इक्वल टू आर, तो A एंड B बोथ आर इक्वल, तो क्या होगा बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इक्वल कट 1, 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वेयर। सो ई स्क्वेयर इक्वल टू इधर आएगा 0, eccentricity is 0. Done. So for circle eccentricity ratio is always 0. Clear students? And this is again one more relationship between A, B and eccentricity. B square equal to A square 1 minus E square. Understood?